લાઈન બોલીને ડબલ કરવાની. હરિવર મુજને હરી ગયો મેં તો વાલ કીધું નોતુને તોય આવી મુજને હરી મેં તો વાલ કીધું નોતુને તોય આવી મુજને હરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો મેં તો વાલ કીધું નોતુને તોય આવી મુજને હરી ગયો મેં તો વાલ કીધું નોતુને તોય આવી મુજને હરી ગયો અબૂધ અંતરની હું નારી હું સુજાણું પ્રીતિ અબૂધ અંતરની હું નારી હું સુજાણું પ્રીતિ હું સુજાણું મારે અંતર સુજાણું મારે અંતર અબૂધની કઈ ગીતી અબૂધની કઈ ગીતી અબૂધની કઈ ગીતી અબૂધની કઈ ગીતી એ તો મુझ કંઠે બે કરતી એ તો મુજ કંઠે બે કરતી વરમાળાએ તરી સરસ. એક મિનિટ. હરિવર મુજને હરી ગયો બહુ સરસ. હરિવર મુજને હરી ગયો મેં તો વાલ કીધું નોતુને તોય આવીને મુજ હરી ગયો. વાલ કીધું નોતુને તોય આવી મુજને હરી ગયો સપનામાં એ જે ના દીઠું સપનામાં એ જે નાદીઠું એ જાગીને જો તે જાગીને જો સપનામાં એ જે ના દીઠું સપનામાં એ જે ક્યાં બેઠો? એ જાગીને હમ. જોવું જાગીને જો આ તે સુખ પછી છે કરીએ. કે દુઃખ મીઠું આ તે સુખ છે કે દુઃખ મીઠું રે હસવું કે રોવું રે હસવું કે રોવું ના સમજું તોય સહેવાતું રે ના એ તો સમજ અનુભવ છે એનો. સહેવાતું રે એવું કહીએ કરી ગયો એવું કહીએ કરી ગયો ઓ હરિવર મુજને હરી ગયો હરિવર મુજને હરી ગયો મેં તો વાલ કીધું નોતું ને તોય આવી
માલ કીધું ન પૂને તોય આવી મુજને હરી ગયો. અધરામૃત રસ એક જ બુંદે, અધરામૃત રસ એક જ બુંદે હું બની ગઈ મહાસાગર. હું બની ગઈ મહાસાગર. અનંત જન્મોની પતજડમાં, અનંત જન્મોની પતજડમાં, અનંત જન્મોની પતજડમાં, અનંત જન્મોની પતજડ खजाना के लिए તારું મિલન ફાગણ. તારું મિલન ફાગણ. રંગ ભીનો એ ગુલાલ છાટી, રંગ ભીનો એ ગુલાલ છાટી, રંગ ભીની એ કરી ગયો. રંગ ભીની એ કરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. મેં તો વાર કીધું ન તૂને તોય આવી મુજને હરી ગયો. મેં તો વાર કીધું ન તૂને તોય આવી મુજને હરી ગયો. ના સમજું તોય સહેવાતું રે. ના સમજું તોય સહેવાતું રે. એવું કહીએ કરી ગયો. એવું કહીએ કરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. તો વાલ કીધું નો તૂને તોય આવી મુજને હરી ગયો. મેં તો વાર કીધું ન તૂને તોય આવી મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીના. આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીના. સુને કેવું જાગવું, સુને કેવું જાગવું. જાગ્યો તે નવા હોય એમને આપજો. નવાને ઉજાગરો. નવા હોય આપજો એમને. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને. આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીના હાથે. આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીરા હાથે. સુને કેવું જાગવું આતે. કેવું સૂને કેવું જાગવું. આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીરા હાથે. સુને કેવું જાગવું તે. કેવું સૂને કેવું જાગવું. સામે આવે તે પહેલા સુખડા મેં પામી
દીધા સામે આવે તે પહેલા સુખડા મેં પામી લીધા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી લીધા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી લીધા મારો તે લાગે મુને ભાર રે જોગીડા તે મારો તે લાગે મુને વાર રે જોગીરા રે ભોગવવું એની તારીખ બારીખ? ભોગવવું કેવું જાગવું સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને સપનામાં જાગ્યો તેનો પાછળ બેઠા છે? ઉજાગરો ને આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીડા હાથે આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીરા હાથે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું આતે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતે શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતે ઘૂમી ઘૂમીને વિજલ ખાતી પછડાટ પોતે ઘૂમી ઘૂમીને બીજલ ખાતી પછડાટ પોતે લપસીને લથડે લાખો વાર રે જોગીડા તે લપસીને લખડે લાખો વાર રે જોગીરા તે એવું લખ્યું છે એને. રે રૂજાવું કેવું વાગવું આતે કેવું રે ગાવું કેવું વાગવું સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીડા તે આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીરા તે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું આતે શું કે નહીં? સુને કેવું જાગવું પંખી પોતામાં ઉડી પોતામાં ડૂબી રહેતો પંખી પોતામાં ઉડી પોતામાં ડૂબી રહેતો આખું આકાશ ને ચોગમ લપેટી લેતું આખું આકાશ ને ચોગમ લપેટી લેતું ઊંચું ને ઊંડું હારો હાર રે જોગીડા તે ઊંચું ને ઊંડું હારો હાર રે જોગીરા તે નોખું ને નોખું એકાકાર રે જોગીડા તે નોખું ને નોખું એકાકાર રે જોગીરા તે ઉતરવું ને કેવું ત્યાગવું તે કેવું તરવું ને કેવું ત્યાગવું સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીડા હાથે આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર રે જોગીરા કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું તે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું તે
बोल, जवाब दो, जवाब दो उसका है। हाँ नहीं, आप बताओ। जवाब मिला नहीं, तू समझा नहीं। नहीं, जोगीड़ा रमेश लगा के बैठा है, ठीक है। नया कौन आया है पीछे? सोसाइटी के? अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी, बहुत सारू। तो सुरेश जी आज थोड़ा प्रसंग लेते हैं। वो दीपक आनंद जी जो थोड़े कुछ है संभाल सके हैं, वो उनके पास है ही दिया खजाना से, वो निकाला, कुछ कमोडिटीज़ निकाली, उसमें से जो भी लोग वो इसी ही कमोडिटी है। बोलो, बार्टरेबल भी है और ऐसी है। हमें चालू बात करें। ये फर्स्ट कमोडिटी देखो, क्या बताया? देखो, ये फर्स्ट कमोडिटी अगर हाथ में आ जावे तो बताऊं। ये बोलते हैं, वंस while going to Nairobi from Bombay, Kanu Dadaji's natural utterance, how a moving being of the natural moving whole system, how a moving being of the natural moving whole system, how a moving being of the natural moving whole system can become the mover in it, can become the mover in it, but to be one naturally, but to be one naturally. उन्होंने 3 एक्सक्लेमेशन मार्क किए हैं, चौथा क्वेश्चन मार्क कर लिया है। आपने बताया था ऐसे कि नॉर्मली कोई कहे तो क्वेश्चन मार्क करके एक्सप्लेनेशन करता है। हमने बताया ऐसा ही करूँ। ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम होता है, इतनी प्रेशियस कमोडिटी है ये, टू बी नेचुरल। अगर हम नेचुरल हो जाए तो प्रेशियस हो जावे। अरे बोलने, नेचुरल होने से प्रेशियस हो जाएंगे। नहीं, अगर हम नेचुरल हो जावे एज ए मूविंग बीइंग इन द नेचुरल मूविंग सिस्टम ऑफ द होल सिस्टम, हाँ, इन द नेचुरल प्रेजेंट। विदाउट बीइंग मूवर इन इट, उसमें मूवर ना हो, नेचुरल हो जावे। तो नेचुरल होते उसका मूविंग सिस्टम का मूवर रहेगा वो। विदाउट बीइंग अ मूवर। ये तो प्लेन में बात निकली है। मैं नैरोबी जाता था तब, तो प्लेन में ये बात निकली है, उसको क्या, तो मैं मूव तो नहीं कर सकता प्लेन में, तो ये बात निकली, नहीं समझा? हाँ, कूट के वो पीछे तो कर अंदर मूवमेंट कर सकता हूँ, तो अंदर मूवमेंट करके निकली बात। कैसे निकली थी? नेचुरली रहता है। ऐसे कुछ कोई अखबार पढ़ रहे थे आप, मेरे हाथ में कुछ आया और अखबार भी लिखा था और इसमें उसके ऊपर में लिख लिया ये कि देखो पढ़ो, तो पीछे उसको बहुत पसंद आया तो यहाँ डाल दिया। एकदम हमें लगा क्या है,
हम नेचुरल रस हो सकते हैं? हसमुख भाई बोलो, हम महीना बोलो, तुम बोलो, मुझे बता, मैं बुलाता हूँ, ऐसा बोलो। मैं हसमुख क्या नेचुरल हो सकता हूँ? पूछो आपको। मैं हो सकता हूँ? नहीं, आप पूरा बोलो। मैं हसमुख नेचुरल हो सकता हूँ? नेचुरल महीना क्या? कुदरत का चलाया कुदरती हो सकता हूँ। तो क्या नहीं हसमुख नहीं है ऐसा? क्या लगता है? नहीं समझते? समझ में आता है? नेचुरली जैसा हो रहा है चलने, तो जैसा नेचुरल तो होने वाला तो है क्या मैं अनंत नेचुरल नहीं हूँ? तो नेचुरली चलता है, इसको नेचुरल नहीं चलना देता मैं? चलना देता एक्चुअली चलती तो रहा है नेचुरली, तो चल रहा है। अनंत नेचुरल, तो उसको नेचुरली लिव आउट करने नहीं देता मैं? ऐसा अनंत हूँ? नहीं, तो कैसा हूँ? लिव आउट करने देता हूँ नेचुरली। अनंत को भाई, बरोबर, पक्का? तो आहिस्ते आहिस्ते क्यों बोलता है? नहीं, आज तक कॉन्फिडेंस लेके नहीं। ये तो इतना कम मार्क मिलेगा। जैसे बोल सच्ची क्या बात है? रह सकता है? हाँ, नेचुरली चलेगा तो मैं नेचुरल रह सकता हूँ? रह सकता हूँ। और कितना टाइम रह सकता हूँ? सभी टाइम? सब टाइम में नहीं रहता। हाँ, जोर से बोलने। सब टाइम में नहीं रह पाएंगे। कौन अनंत अनंत? कौन है? मैं? कौन? अनंत में मैं अनंत नहीं रह पाऊंगा। मैं नेचुरल। हाँ? मैं नेचुरल। शादी में, एग्जामिनेशन में क्या हंसती है नीला? यही जीवन है, जीवन यही है सरला। एक बार अच्छा देखो हम कैसे, मेरा जीवन गया और आज क्या जी रहे हैं, ये अनुभव बोलते हैं, उसको अनुभव बोलता है। क्या ये कॉमोडिटी है? अगर सारा वर्ल्ड में जो भी मनुष्य है, कहाँ भी हो, किसी भी कोने में हो, भारत में भी कहाँ भी हो, एक भी मनुष्य ऐसा नेचुरल हो तो प्रीशियस कॉमोडिटी नहीं हो? होगा ही। बोलो ने। हाँ, होगा। बोलो ने, बोलो। होगा नेचुरल। तो कृष्ण भगवान थे कि नहीं? हाँ, अपना शरीर जैसा अपना है वैसा शरीर के साथ थे कि नहीं? बोलो ने। हाँ है। न, वो जब थे तब, जब थे, हाँ थे। जब जन्म पाया तब, जन्म पाया तक मनुष्य के शरीर में पाया था ने? बोलो ने। हाँ, शरीर में पाया था। कि शरीर बिना शरीर? नहीं, शरीर के। सच्ची बात बताया था हाँ हाँ, शरीर में तो। कि कल्पना है? नहीं, शरीर में तो थे। तू सच्चा मानता है? हाँ। भगवान मानता है कृष्ण भगवान को? कैसा मानेगा? ऐसा ऐसा मानता है आप? भगवान को शरीर कैसा होता है? शरीर होता ही है। तो પછી कृष्ण भगवान शरीर के साथ कैसे जन्मे? बोलो। काया लेके आया। ये सब बताता हूँ मैं। तो भगवान क्यों क्या बोलते हो उसको? हंसते हैं आप? आपके प्यारे नहीं है तो भगवान क्यों बोलते हो? अंदर भगवत गुण प्रकट हो गई इसलिए। क्या? शरीर में भगवत गुण प्रकट हो गई, आत्मा खुला हो गई। वो शरीर भगवान नहीं है तो वो गोपियों ने तो शरीर को ही भगवान मान लिया। जो नहीं जानते हैं वही मानते हैं। हाँ? जो जिसको मालूम नहीं है वही मानते हैं, मालूम होता है उसको तो।
मैं अबुध नारी, मैं क्या समझू? हाँ, अबुध को अबुध ही पहचान सकता है। हाँ? बुद्धि तो दखा करती है, इसलिए नहीं पहचाना जाता उसको। तो मीनाबेन क्या बोलती है? अबुध को कौन पहचान सकता है? बुद्धिशाली ना, जो बोलती नहीं, क्या करे उसको? अरे जोर से तो बोल। क्या? तो कौन पहचानेगा? तो अबुध कीमती चीज है, जो अबुध वाला होगा वो कीमती है। हाँ, ये दुनिया में इसको कौन, उसकी कीमत कौन समझेगा? वो ढूंढ निकाल, वो ढूंढ निकाल। तो सबसे प्रेशियस क्वालिटी तेरे हाथ में आ गई। अगर अबुध अनंत तेरे को मिल गया तो तू कल्याण हो गया, तेरा खजाना मिल गया। जा क्या हो गया? अबुध अनंत उसको मिल गया तो तो पीछे वही शेयर कर सकते हैं, सही है। थोड़ा बता। वर्ल्ड के सभी लोगों के साथ वो बार्टरेबल है, पर कोई उनके साथ कौन बार्टर कर सकेगा? क्या बात करती है इसे? क्या रीटा क्या बोलती है? नाना बोलती है और आप हा बोलते हैं। भाई मैं गलत बताया? क्या बात है? तो क्या वो कमोडिटी के पीछे लगते मिलती है हमें? नहीं, हमें अंदर पड़ी है, उसको ढूंढनी, उसको किसी ने, बस यही है। वो अनंत को बाहर निकालना है। वो खजाने में है ही, और अनंत बाहर खजाना खुद ढूंढता है। क्यों हंसते हो मेरे पर? नहीं, अब थोड़े पर समझाइए। अभी समझे? नहीं, पूरा नहीं समझा। मैं हसमुख अबुध हूँ। ऐसा अबुध हसमुख आपको मिल जाए तो सबसे प्रेशियस हसमुख मिल गया या नहीं? बोलो नहीं। आपको किसी को दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना प्रेशियस हूँ? नहीं। वो प्रेशियस चीज बन जाएगी। बोलो। हाँ। किसके लिए? सबके लिए। पहले हमारे लिए। पहले खुद के लिए। जो खुद के लिए खुद ऐसी प्रेशियस है तो सारा सभी के लिए प्रेशियस ही है कि नहीं? बोलो। तो प्रेशियस चीज का क्या उपयोग होता है? बार्टरेबल होके बार्टर हो सकती है सभी। जो बार्टर करना चाहे उसके साथ हो सकती है। जैसा जो भी जिस ढंग से बार्टर करे वो हो सकती है। वो सुरेश ऐसी बात है? क्या बात करते? जिसने जैसा चाहा ऐसा बार्टर कर लिया ना। अरे तरु क्या ना बोलती है? हैं? कर लिया। क्या? कर लिया। जिसने जैसा चाहा। वो प्रेशियस जितने क्या उसकी काका कीमत रखी तो काका के हिसाब से कीमत से बार्टर हो गया। भतीजे समझे, भतीजे कीमत से।
जाने या समझे जाने की कीमत से बाटर हो गए, और परमात्मा समझे परमात्मा की कीमत से बाटर हो गए। क्या बताया? और परमात्मा के साथ बात करो। है ना, सबको काम में आ सकती है ना। हाँ? और खुद तो अपनी कीमत गंवाती नहीं ना, नहीं उसकी कीमत चली जाती है क्या? नहीं नहीं। क्यों हंसते हो मेरे पर? हंसते क्यों सर? हाथ में पकड़ने से नहीं आती, कोई पकड़ ही नहीं सकता। स्वाद आता है उसका। सरली स्वाद आया उसको, अंदर बस सुनना, उसके पास से स्वाद आया। कौन बार कौन सी? नहीं जल्दी। हाँ खोली ना कोने, खोली ना को बतन संभराए। अरे आ तो हाँ बोलता है। जीवन मजे की बात, लाइफ। क्या बताया कि वाई प्रेशियस है। नहीं पूछ सकता वाई प्रेशियस है या लाइफ? प्रेशियस क्या है उसमें से? लाइफ लाइफ वाइफ नहीं, वाइफ नहीं। ये आपका वो है ना, वो बहुत अच्छा है। When your life नहीं ये मुझे नहीं, बहुत अच्छा है वो। कुछ नहीं सुन। वो सुरेश जी बोलो। समझा मैं। हाँ? मतलब अगर लाइफ नहीं हुआ तो वाइफ वर्ल्ड में प्रेशियस, लाइफ और वाइफ में प्रेशियस क्या लगता है सबको? वर्ल्ड में सबको लाइफ और वाइफ में, लाइफ और वाइफ में प्रेशियस क्या लगता उन है? दोनों में से लाइफ लगता और है। कीमत किसकी ज्यादा होती है उसको? लाइफ लाइफ जिसकी है उसको। लाइफ तो दीपेन बताता है, क्या बोलता है जवाब? क्या बोलते हैं? क्या? वाइफ बैठी हो तो वाइफ ये इधर आके बोलो। वाइफ बैठी हो तब वाइफ बच गई। वाइफ क्या होता और वाइफ नहीं हो तो? खराब ना लगे। तो रसोड़ा पूरा बना दो। लाइफ में वाइफ ना आएगी। मुझे मालूम क्या बताते हैं, अपने खुद को वाइफ बना देते हैं। आपको कैसे मालूम हैं? है? इसको कैसे मालूम है? हाँ देखते हैं ना वो। ऐसी आप बात बताइए, हैं? आप बताइए। मैं क्या बताऊं, ये तो ये जानते हैं सब। तो सुरेश जी बोली क्या है? दादा ने बताया लाइफ इज वाइफ। जो ये समझ गया तो सबसे ज्यादा सुखी हो गया सारा विश्व में। क्या? सुखी हो गया प्रभु। अगर वाइफ है वो भी समझ गई कि जो मैं वाइफ हूं, जिनकी वाइफ होने वाली हूं, लेकिन मैं खुद की वाइफ, ओ मैं खुद की ही वाइफ हूं, तो खुश, बहुत सुखी हो जाएगी। जहां भी वाइफ होने को जाएगी बहुत सुखी हो जाएगी, जहां भी जाएगी कहीं दुखी नहीं होगी। पर आज ये सब होता नहीं ना काम। और जो जिसको वाइफ चाहिए उसको समझ जाए कि मेरी लाइफ वही सही वाइफ है, तो उसको वाइफ आएगी, तभी वो वाइफ उससे कभी भी दुखी न होगी। उससे कैसा भी वर्ताव हो जाए फिर भी दुखी न होगी। जाओ, ऐसी बात है, समझी?
वो दोनों को बिल्कुल लागू होता है, स्त्री और पुरुष दोनों को। स्त्री को स्त्री की ढंग से समझना है, पुरुष को पुरुष की ढंग से समझना है। वो तो प्रकृतियां है। क्या है? नहीं समझे? हाँ, इस ढंग से समझना है। नहीं समझा? हाँ, समझ गया। तो बस काम बन गया। तो दोनों का मिलन में प्रकृति के स्वरूप में, प्रकृति के साथ कहां भी होगा, सुखी ही होगा। जाओ, आप क्या बोलते हो साहब? नहीं, सच्चा बताओ ना। अच्छा इसी बात है। जन्माक्षर मिला के सुखी नहीं होते, सही समझ से होते हैं। क्या रीटा? सही समझ से। तो महाराज साहब कोई शिक्षण नहीं देता तो क्या करे? शिक्षण देते ही नहीं। वर कन्या सावधान करके चले जाते हैं क्या? तो वर को भी सावधान रहना पड़ता है, दोनों को। दोनों एक दूसरे से सावधान ही रहा करते हैं। क्या करें? क्या नहीं समझा? जैसा समय आवे ऐसा सावधान रहो। अच्छा, जैसा समय वैसा। वो बाहर से रहना है, जो बाहर से रहना है वो अंदर से न रहना। ऐसे समझे ना? जो अंदर से रहना हो बाहर से न रहना, ये लाइफ वाइफ का सिद्धांत है। क्या बताया? वाइफ का सिद्धांत। हाँ, दोनों के लिए। नहीं समझी? समझ में नहीं आया? ये आपके लिए कहाँ है? सबको लागू पड़ता है, प्रकृति तो सबके पास है। कृष्ण भगवान को तो वो गोवाला ने गोपी पूछती थी, अबुध नारी और पुरुष सबको, गोवाल भी पूछते थे, सबको पूजा करते थे। तो क्या भेद कहाँ था? कहाँ भेद था? समझे कि नहीं? इसी बात है। वो समझने की बात है। तो ये बात नेचुरल होने की। अभी दूसरी बातें आई कि जब हम मद्रास जनवरी 1999 में, जैसा कि बताया कि स्थान नहीं लिखा है यहाँ, शत्रुंजय हॉल, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ, उसका बेसमेंट में सत्संग था, हॉल था बड़ा। वहाँ एक जितेंद्र करके 26 साल का जैन लड़का पर्यूषण सबको प्रतिक्रमण करवाता था, और 2 लड़के आए थे, उसमें से छोटा था, उसने पूछा तो हमने उसको शाबाशी दी कि वाह क्या प्रश्न करता है। वो शास्त्र पढ़ाता था उस साधु को जिसको अभ्यास करते हैं ना, वहाँ वो लड़का होता है, जैनों में होता है। ये भाष्य करता था। हाँ, वो भाष्य की बहुत उसको अच्छी जानकारी थी। 26 साल का था साहब। वो पूछता है, जितेंद्र उनका नाम था, रूपी कर्म अरूपी आत्मा पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? फिर से बोलूं? हाँ, रूपी कर्म, फॉर्म वाला, रूपी म्हणजे फॉर्म वाला, ये दिखाई पड़ता है, अनुभव 5 इंद्रियों से होते हैं सब। रूपी कर्म अरूपी आत्मा को, जिसको फॉर्म नहीं, ऐसा आत्मा, निरंजन निराकार, अरूपी आत्मा को पर कैसे प्रभाव डाल सकता है और सारा विश्व में
सभी लोग का ये अनुभव है कि रूपी कर्म का प्रभाव अरूपी आत्मा पर है। सारा विश्व का अनुभव है ना, और यही बात है ना। और भारत में सभी धर्मों के शास्त्रों में यही बात है ना। जैन धर्मों के शास्त्र में ये बात है। सीधी नहीं है। सीधी भी है और टेढ़ी भी है। सीधी है वो सीधी 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 नहीं है, लेकिन टेढ़ी सीधी है। दिखावा में सीधी है, अंदर से टेढ़ी है। और टेढ़ी है वो दिखावा में सीधापन दिखाती है, बिल्कुल बस टेढ़ी। दोनों ढंग से है शास्त्र में, जैन शास्त्रों। उसमें सीधापन है, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता। समय सार जी का शास्त्र है, कुंकुंजाचार्य जी का, लेकिन उसमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसमें से बहुत कुछ भाष्य लिख लेंगे, कोई कई लोग लिखेंगे। अब सुनते हो, सभी जो रचनाएं कुंकुंजाचार्य जी की है, उसके पर कई लोग ने कहीं टीकाएं की है, भावार्थ किए है, क्या क्या नहीं किए। वैसे ही ये ब्रह्म सूत्र वगैरह सब कुछ, विचार सागर, जो कुछ बोलो वो शुक्ला जी समझे। फिर भी ये बात कोई नहीं समझ पाएगा। यही बात करेंगे कि अरूपी आत्मा पर रूपी कर्म की प्रभाव है ही। एक दादा भगवान वर्ल्ड की प्रेशियस कमोडिटी, उन्हों से ये सीक्रेट बाहर निकल गई, जो सीक्रेट कई कालों से खजाने में दब गई थी। बोलो 10 लाख साल, नहीं समझे? हाँ, ऋषभदेव आदिनाथ के समय और शुरुआत उन्हें की, और तब से दब गई थी। शुरुआत की, फिर भी रही नहीं हो, क्योंकि एक काल का प्रभाव। अच्छा काल था बीच वाला, फिर भी वो ऐसी सुषुप्त रही। अच्छे काल वाले अच्छे काल तक समय निकाल दिया, लेकिन उसमें भी बीच में थोड़ी गड़बड़ आ गई, गैप आ गई, गैप। वो तो आ सकती है ना, क्योंकि काल ये आधा चक्र ऐसा है, उल्टा और पुल्टा। उसमें सब लोग सुलटे रहने का कोशिश करते हैं। कैसे रह सके भाई सुरेश? पर कोई बोलने वाला तो नहीं है, वट कट से ही रहते हैं ना। पीछे आगे पूछता है, यह सच है अरूपी एवं रूपी कभी नहीं मिल सकते? ये पूरा प्रश्न है। पहला एक पार्ट है, पीछे दूसरा पार्ट है। देखो कितना कैसा प्रश्न किया है बच्चा ने, तो था ना उसका। इसी तो उसके पर जो निकल गई थी बात, यहाँ मेरे ख्याल से दिलीप से रिकॉर्ड हुई है, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हुई थी। आपको मालूम नहीं है? आपको भी मालूम नहीं है? दिलीप या देवयानी, लेकिन आप धुन नहीं निकाल तो कह पाए आज तक नहीं। क्या रिकॉर्डिंग है? कहाँ है? कैसेट में है शायद। कौन? उसका सब सूत्र आ गया, अभी सूत्र आ गए, वो मैटर भी नहीं आए। कैसेट है, तुम जानते हो है? हाँ बिल्कुल। तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं निकाल पाते तो पीछे कितना उसका जनवरी का है ना, अभी डेट पता चल गया, तो भी मिलता है। देखो, बहुत अच्छा है। ये भंडारा है, भंडारा में क्या चीज़ नहीं है और निकाल नहीं पाते। अगर अक्रम विज्ञान मांगता है
क्या करते हो? रिसर्च कोई नया नहीं निकालते हैं भाई, तो निकालो। अरे आपके अंदर अनुभव पड़ा है, उसको भंडारा में से निकालो ने। कैसा भी लिखो, उसका बिल्कुल उसका सही रूप से वो चला जाएगा और सबको काम में आएगा, एनकरेज करेगा, उत्साहित करेगा। जो भी उत्साहित कर सकता है वो प्रेशियस कमोडिटी है। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ क्यों? हाँ क्यों? कुछ समझा मैं बताया वो? जोर से बोलना है। उत्साहित कर सकता हैं? है प्रेशियस कम्युनिटी, क्या? आप बोल रहे हैं जो उत्साहित कर सकता है, हैं? जो उत्साहित कर सकता है वो क्या? उत्साहित उत्साह, जोर से बोल रहे। उत्साहित 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 अच्छा बोलो। टेलिंग हिंदी है, गुजराती हो चुका है। ये हिंदी अलग से बोलते हैं। हाँ? इनका एक्सेंट थोड़ा नहीं सर, एक्सेंट थोड़ा वो बंगाली। बोलो। जो उत्साहित कर सकता है जो उत्साहित कर सकता है उससे और क्या प्रेशियस कमोडिटी हो और सकती क्या है? प्रेशियस कम्युनिटी हो सकती है? कोई भी हो, कोई तो अपने आपस में हो तो भी अच्छी है ना हो तो अगर जगत में प्रेशियसनेस ढूंढना हो तो मिल जाती है। तो हम कौन सी प्रेशियसनेस की कमोडिटी ढूंढते हैं? गोल्ड, डायमंड डायमंड्स, मनी, और पैसा। मनी प्रेशियस है कि गोल्ड डायमंड प्रेशियस है? गोल्ड डायमंड है, तो मनी नहीं है? मनी भी है। रियल एस्टेट लैंड, हैं? रियल एस्टेट लैंड वो तो मालूम नहीं है, ये क्या बोलते हैं? तो बहुत अभी प्रेशियस हो गया ना, इन्वेस्ट करते लोग। रियल मीना क्या? लैंड रियल मीना क्या? उसको रियल एस्टेट क्यों बताया है? ये तो मुझे मालूम नहीं, आपने बताया। नहीं, हम तो अभी जो लोक भाषा है सर, लेकिन रियल एस्टेट लोग भाषा बोलते हो। क्या बतावे उसराज जी? आप अच्छे समझ बैठे हैं। लेकिन आपके पास से सही मीनिंग निकलता है इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं। तो रूपी कर्म अरूपी आत्मा पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? यह सच है, अरूपी एवं रूपी कभी नहीं मिल सकते। तो दोनों का जवाब सही उस समय निकला था। अभी वही रिकॉर्ड में क्यों कैसा रिपीट करूं बताओ? एक रिकॉर्ड बज गई उस समय जनवरी 99 में। आज सितंबर 2009 में वो रिकॉर्ड में कैसा रिपीट कर सकता हूं बताओ ने? उसकी रिकॉर्डेड मैसेज है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन वही रिकॉर्ड कैसे रिपीट हो सकती है? हाँ? ये वक्त क्या वक्त मैसेज लेकिन सभी कभी भी वो प्रेशियस कमोडिटी है तो कभी भी निकल सकती है। क्यों? कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड है। क्या बताया? ओरिजिनल रिकॉर्ड। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड उस समय बज गई, वो जो समय के अनुसार उसकी साइंस के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से बज गई, वो आज के समय के अनुसार, आज के संयोगों अनुसार, आज के वैज्ञानिक संग से बज सकती है। क्यों नहीं? अगर ओरिजिनल है तो वो रिकॉर्डेड नहीं। ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब ये है सूरज जी, और टैप रिकॉर्ड का मतलब ये है कि चार्ज हो गई हुई रिकॉर्ड आज डिस्चार्ज स्वरूप से बज रही है। आगे चार्ज हुई रिकॉर्ड आज डिस्चार्ज स्वरूप से बज रही है। आगे चार्ज पावर से चार्ज हो गई हुई रिकॉर्ड आज डिस्चार्ज पावर से वो रिकॉर्ड बज रही है। समझी कि नहीं रीटा? रमेश कहाँ गुम हो गया? अरे वहां दूर कैसे चले गए? उनके क्या दिक्कत? हाँ? अच्छा।
अरे पीछे सुनाई पड़ता है? अच्छा, तो अच्छी बात है। तो रूपी कर्म अरूपी पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? बिल्कुल सच्ची बात है। प्रश्न बड़ा अच्छा था। तो हमारी रिकॉर्ड उस समय बजी थी, वो अभी भी वही बजेगी, लेकिन आज के समय के अनुसार आएगी कि रूपी कर्म का प्रभाव अरूपी आत्मा पर नहीं होता, समझे? लेकिन रूपी अरूपी आत्मा पर होता है। क्या बताया? बोलो। तो क्या आत्मा के प्रकार कितने हैं? तो आत्मा के प्रकार अगर आपको जानना ही है तो रूपी अरूपी आत्मा, अरूपी रूपी आत्मा और अरूपी आत्मा, ऐसे 3 प्रकार की आत्मा है। प्रथम 2 आत्मा में से पहला आत्मा भटकती रूह है। क्या बताया? भटकती रूह है। रूपी अरूपी। दूसरा अरूपी रूपी आत्मा, वो भटकन में से मुक्त हुई आत्मा की अवस्था है। भटकन में से मुक्त हुई आत्मा की अवस्था है। आत्मा की अवस्था मैना अरूपी आत्मा की अवस्था है। अरूपी आत्मा की अवस्था मैना उनका रिप्रेजेंटेशन है एजेंसी स्वरूप से। ये बात है जो स्वयं अरूपी आत्मा स्वरूप हो जाती है। शुरुआत हो गई अरूपी के स्वरूप में हो जाती है, और इसी कारण अरूपी रूपी बिगिनिंग होते ही ये बात सच है कि वो नहीं हुए वहां तक अरूपी मूल आत्मा एवं रूपी अरूपी आत्मा और रूपी कर्म कभी नहीं मिलते, साथ में होते हुए भी, साथ में होते हुए भी। बोलो। साथ में होते हुए अपने अपने ढंग से अलग ही होते रहते हैं। इस ढंग से बात है। कितना ये बच्चा 26 साल का, लेकिन वो बहुत द्रव्य का द्रव्यानुयोग पढ़ा था ना, 26 साल का बताओ। वो है या जैनों में होते हैं, जैनों में होते हैं। ये जनवरी में मिला था मुझे 99 में। अपना कौन से वो सोहनलाल जी, सोहनलाल जी, उनके वहाँ हम रहते थे। बात ही मेरे ख्याल से नहीं, आप नहीं थे, आप थी नहीं थी, वो नीचे सत्संग हुआ था तब आपने बात है। नहीं, दूसरे समय आए आप तो, वो समय नहीं आए। वो दिलीप ले गया था और सोहनलाल की भी भावना थी। और तभी एक मुसलमान आया था मेरे पास, ज्ञान ले गया, और वो काली माता का चुस्त भक्त था, दुर्गा का बिल्कुल। अब नहीं जानते, उसके पास कई लोग माता के बारे में जानने आते थे। आप मानेंगे, वो दरअसल वो मुसलमान नहीं है अभी, वो कर्म के वश मुसलमान है। असल हिंदू वो कर्म के वश मुसलमान है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ऐसी होती है यार, ये कर्म की असर है, समझे? और मुसलमान में से वापस हिंदू आ जाते हैं कर्म के असर में से। ऐसा हो सकता है। ओ कई छे
अच्छा, अभी चलो, अभी रखो, अभी चलो जाओ, अभी आप चालू रखो थोड़ा। कितना समय बाकी है? आधा घंटा है। हाँ, सब खाना खाएंगे? हाँ जाओ। अच्छा।